Okay, so we'll start the class now. Yes, ma'am. So today we'll see the process state diagram, which we have seen in the last class in brief. So there are mainly there are 5 stages through which a process has to undergo while it has to execute 4 states. This you can okay, I would share everything. Yes. So when we create a program, so it is in the secondary memory, right? And this is normally when the program is picked from the secondary memory for execution, it is known as new. It is in the new state. Okay. Then long-term scheduler brings the program from this new state from the second picks the program from the secondary memory and brings it to the primary memory for execution. That is, it comes in the ready state. That means the process is ready to execute. Okay? Then we have running state. When suppose we are talking about the uniprocessor system, there is only one CPU. So only one process can be executed by one CPU. So the program, there are multiple programs in the ready state. So one program is picked by this short-term scheduler. This already we have discussed in the last class. I'm repeating. So short-term scheduler picks the program from the primary memory, from the ready queue, and assigns CPU to it. And then then process is running. The process is when the CPU is assigned to the process, it is in the running state, right? So and when the process completes its execution, then the process is terminated. So this is a normal scenario. If when a process is created, then it is in the ready queue, then running and termination. This is one scenario. Suppose CPU is assigned to the process and the process wants to perform some input and output operation, right? So at that time, what happens? The operating system shifts that process to the wait and block state. So that CPU can be assigned to some other process. This is another scenario. So when that process completes its input and output operation, it again goes to the ready state, and then again it follows the same procedure. The CPU will be assigned to it, and then it completes its execution. Okay. So this is second scenario. Suppose a process is running and some high priority process, that is some operating system process comes in between which has higher priority. Then what happens? क्या होगा जो आपकी रनिंग प्रोसेस है that will again goes to the ready state and that high priority process will be assigned the CPU. ठीक है, this is another scenario. ये भी हो सकता है कि आपको अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी तो जो रनिंग प्रोसेस है एट प्रेजेंट जो रनिंग प्रोसेस है तो उसको आप रेडी क्यू में अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट कर देगा. देन जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है दैट विल बी सीपीयू विल बी असाइंड टू दैट प्रोसेस. ठीक है. नाउ जो हमने फोर्थ सिनेरियो हमने क्या देखा था? सपोज this wait this ready state, running state and wait and block, all three are in the primary memory RAM. Okay, ready state जो maintain होती है वो RAM में होती है, primary memory में running state and wait and block. ठीक है. Now new जो है, new is in the secondary memory and some other suspend ready and suspend wait, these also remains in the secondary memory. सपोज क्या होता है आपकी रेडी क्यू फुल हो गई है एंड सम मोर प्रोसेस वांट्स टू कम इन दिस रेडी स्टेट. एट दैट पॉइंट क्या होगा? सम प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी क्यू विल बी शिफ्टेड टू द सस्पेंड रेडी स्टेट एंड दिस इज मेंटेन इन द ऑक्सिलरी मेमोरी, इन द सेकेंडरी मेमोरी, राइट? Then same thing, suppose the wait and block state is fully occupied and some more processes wants to come in it for input output operations, then we have created a new state that is suspend wait. So some processes from the wait and block will come in the suspend wait state. So because these processes which are in the wait and block are performing their input and operation, input output operation.
so they can perform their input output operations while remaining in the secondary memory also. तो क्या होगा, यहाँ से इन्होंने सस्पेंड किया, these are performing their IO operation, and again if suppose there is space in this, they will again resume their operation. Suppose क्या होता है कि आपकी ये वाली स्टेट बहुत टाइम तक ये जो प्रोसेसेस या वेट कर रही है, काफी देर तक वेट करती रह रही है, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस क्रिएट नहीं हो रही. एट दैट पॉइंट क्या होगा, जो प्रोसेसर यहाँ पर है आपकी सस्पेंड वेट में, वो क्या होगा, सस्पेंड रेडी स्टेट में जाएंगे एंड अगेन सस्पेंड रेडी से देन दे विल कम इनटू द रेडी स्टेट. इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है. So there are new ready running termination, wait and block, suspend wait and suspend ready state. There are 7 states. Now we have some schedulers. There are 3 types of schedulers: long term, middle term and short term scheduler. So the first one is long term scheduler. Long term scheduler क्या करता है? Long term scheduler it brings the processes into the primary memory for ready state. जो आपकी there are some programs residing in your secondary memory and you want to execute those programs. तो long term scheduler का काम क्या है? secondary memory से processes programs को लेकर आना है ready state में, मतलब RAM को primary memory में shift करना है, and this is long term. So there its decision is long term. मतलब this decides your degree of multi programming. Multi programming मैंने बताया था आपको. The more and more long-term scheduler का काम किया था to bring more and more programs to your primary memory for execution. ठीक है, so this is the degree of multi-programming. मतलब जितने programs आप how many programs can be reside in your primary memory is known as your degree of multi-programming. Degree of मैं सस्पेंड स्टेट वर्चुअल मेमोरी में होता है. हाँ, लेकिन वर्चुअल जॉब्स की हाँ वर्चुअल मेमोरी में स्टोर करते हैं. Degree of multi-programming क्या होता है? The number of programs, number of processes which can decide primary memory. ठीक है, and this is the work of long term scheduler. ठीक है, long term scheduler decide करता है, brings the programs from the secondary memory to the primary memory. Suppose for example 100 processes are there. मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए. Yeah. Suppose 100 processes are there in primary memory, then what is the degree of multi-programming? Degree of multi-programming is 100. ठीक है? ठीक है. Then we have and this is very slow. Then we have middle first we will see the short term scheduler. What is short term scheduler? Short term scheduler क्या करता है? It takes the process from the ready queue and assigns CPU to it. ठीक है, short term scheduler is very fast and it takes one process from the primary memory and CPU assigned कर देता है. If we are talking about the uniprocessor system, suppose there are multi processors, then suppose 2 processors हैं, तो 2 process pick करेगा, 2 processors को assign कर देगा. This is also known as dispatcher. Dispatch करना. Dispatcher, ठीक है.
मतलब रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लाना है. देन वी हैव मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? जब भी कोई प्रोसेस आई हो, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही हो, तो उसको वेट एंड ब्लॉक स्टेट में ले जाना, या फिर वेट एंड ब्लॉक स्टेट में है और ये दिस इज ऑलरेडी फुल, तो उसको सस्पेंड वेट में ले जाना. ये मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम. सपोज रेडी क्यू फुल हो चुकी है, तो सम प्रोसेसेस को शिफ्ट कर देना सेकेंडरी मेमोरी में, सस्पेंड रेडी में. तो दिस इज द वर्क ऑफ मिडिल टर्म शेड्यूलर. अभी आपको इसमें कोई डाउट है? फिर मैं इनकी कुछ कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन करवाऊंगी. आपको इसमें कुछ डाउट है जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है? हाँ, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन जो भी प्रोसेस को रिसोर्सेज अलॉट की गई है, सारी की सारी रिसोर्सेज उसकी डी एलोकेट कर दी जाती है. ठीक है. और जो उसका पीसीबी होता है, पीसीबी में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है एक पर्टिकुलर प्रोसेस की. ठीक है. वो कौन सी स्टेट में है, तो अगर उसको बीच में इंटरप्ट किया गया है तो नेक्स्ट उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी पीसीबी में रहती है. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो जैसे ही कोई प्रोसेस एंड होती, टर्मिनेट होती, तो उसका पीसीबी डिलीट कर दिया जाता है. तो सारी रिसोर्सेज उसकी ले ली जाती है, डी एलोकेट कर दी जाती है. ठीक है. मैम हाई प्रायोरिटी वाला केस एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार. कौन सा केस होगा? रिपीट करिए क्वेश्चन. हाई प्रायोरिटी वाला केस एक्सप्लेन अच्छा, कर दीजिए एक बार. ओके, ठीक है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रोसेसेस होती है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उनकी. ठीक है. हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है. तो बीच में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी कोई प्रोसेस, यूजर प्रोसेस, देखो एक तो होती है आपकी ओएस की प्रोसेसेस होती है, कुछ कुछ होती है यूजर प्रोसेस जो आप क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो ये जो है इनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है और इससे इनकी लोअर प्रायोरिटी होती है. ठीक है. तो अगर कोई यूजर प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है और उस टाइम पे ओएस की कोई प्रोसेस आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है. उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ जो ऑलरेडी यूजर प्रोसेस चल रही थी उसको हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे रेडी क्यू में, अगेन वो शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. यस मैम. ठीक है. रेडी क्यू में हम उसको शिफ्ट कर देंगे. तो और उस टाइम पे क्या होगा, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी और टर्मिनेट होगी. इसके बाद यहाँ से सेम प्रोसेस को या कोई भी प्रोसेस को पिक करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू असाइन कर देगा. इस तरह से वर्क करता है. सपोज आपने देखा होगा गाड़ी चला रहे हो और है ना, मिनिस्टर की गाड़ी आती है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है. ठीक है. यू हैव टू वेट, ब्लॉक कर दिया जाता है ट्रैफिक. तो जो इम्पोर्टेंट हाई प्रायोरिटी, सिमिलरली हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होती है, पहले वो एग्जीक्यूट होती है और यूजर प्रोसेस को हम ब्लॉक कर देते हैं, वेट करने के लिए बोल देते हैं. ये डायग्राम मैंने, हाँ बोलिए. मैम जब कोई प्रोसेस बीच में रुकती है मैम, तो मैम जब वो वापस रिस्टार्ट होती है तो मैम क्या वो वापस बिगिन से रिस्टार्ट होती है जहाँ से नहीं, वो बिगनिंग से नहीं होती है. उसके लिए पीसीबी मेंटेन किया जाता है. हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है. ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बिगनिंग से नहीं होती है. जहाँ पे उसका एंड हुआ है ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, सपोज ये प्रोसेस है. ठीक है. आपने कुछ प्रोग्राम है आपका, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कुछ कुछ, इंस्ट्रक्शन 1 2. ठीक है. इस तरह से कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन. सपोज आपका 2 इंस्ट्रक्शन तक एग्जीक्यूट हो पाएगा. ठीक है. उसी टाइम पे क्या हुआ, प्रोसेस 1 आपकी एग्जीक्यूट हो पाई थी इंस्ट्रक्शन 2 तक. उसी टाइम पर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, उसको बीच में हॉल्ट करना पड़ा, रुकना पड़ा. तब क्या होगा, इसका जो पीसीबी मेंटेन होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो पीसीबी में सारी डिटेल्स रहती हैं. उसमें ये रहेगा, प्रोग्राम काउंटर का एक कॉलम रहता है, प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर में ये रहता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट करना है. जहां तक वो हो चुका है वो तो हो गया. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब उसमें ये डिटेल पॉइंटर रहेगा यहाँ पे कि यहाँ से अब इसको बिगनिंग करनी है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है. ये वाला ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है. ठीक है. सारी डिटेल्स रहती हैं उसमें, बिगनिंग से नहीं करता है. सी इन द नेक्स्ट क्लास की किस तरह से होता है. मैम
मैम हाँ बताइए। मैम अगर रेडी क्यू फुल है और हायर प्रायोरिटी का अगर कोई प्रोसेस आ रहा है तो मैम वो सस्पेंड रेडी में जाएगा या फिर पहले वो सस्पेंड रेडी में हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले हम साइन करेंगे और जो रेडी में है ऑलरेडी प्रोसेस को हम सस्पेंड रेडी में सेंड कर देंगे। ओके मैम। मैम पीसीबी क्या है मैम? पीसीबी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें सारी डिटेल्स रहती है पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में कि करंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर क्या है, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, सारी डिटेल्स डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? यस। सपोज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर टाइम क्वांटम जैसे हम राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं, ये हम बाद में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट। मल्टीटास्किंग में जैसे ये मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन फैशन, मतलब कि हर एक प्रोसेस को हम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम असाइन कर रहे हैं। ये मैंने बताया था ना जब मैंने बढ़ाया था आपको मल्टीटास्किंग। यस मैम। है ना? ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे। Suppose these are the processes which are in the ready state. ठीक है? Now suppose आपके पास एक ही CPU है, this is one CPU। अगर हम राउंड मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग में P1 हमने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट की, जब तक वो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, जब तक वो अपना कंप्लीट नहीं करेगा एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट प्रोसेस विल नॉट बी अलाउड टू एक्सेस द CPU। इस तरह से होता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हो सकता है कोई प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जा रहा है, तो उस टाइम पे सीपीयू किसी और प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना? मल्टीटास्किंग में क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हम एक टाइम क्वांटम असाइन कर रहे थे। टाइम क्वांटम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करता है, सपोज 1 सेकेंड के लिए उसने सारी प्रोसेस को टाइम क्वांटम दिया हुआ, तो 1 सेकेंड के लिए पहले सीपीयू उसको असाइन हुआ। जैसे 1 सेकेंड कंप्लीट होगा, P2 will be allowed to access the CPU, then P3, P4, P5। ठीक है? फिर अगेन P1 से स्टार्ट होगा, तब तक जो भी इनका एग्जीक्यूशन टाइम है तब तक ये इनको असाइन होता जाएगा। तो ये मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो मल्टीटास्किंग जब यूज होती है तो इसी तरह से यूज होता है। जो P1 को CPU मिला, देन अगेन P1 यहाँ ट्रांसफर हो गई, P2 आया यहाँ पर, P2 यहाँ पर अगेन रेडी क्यू में चला गया। इस तरह से ये मैंने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, ये लाइन में आपको हाई प्रायोरिटी स्लैश टाइम क्वांटम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एंड हियर वी आर डूइंग मल्टी प्रोग्रामिंग। ये जो यहाँ पर हो रहा है ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, टू ब्रिंग मोर एंड मोर प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है? प्रोसेस क्या होती है? द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, दैट इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है? तो वैसे तो जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में है, जो दैट इज नॉट अ प्रोसेस, दैट इज प्रोग्राम इटसेल्फ। ठीक है? बट जब कोई पिक कर ली, मतलब कोई प्रोग्राम रेडी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस क्रिएट हुई है, दैट मीन्स इट इज नाउ गोइंग टू एग्जीक्यूट, दैट इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है? तो आई एम राइटिंग सम पॉइंट्स। फर्स्ट इज न्यू स्टेट, दैट इज क्रिएट। That means you are creating a process. Huh? मैम ये टाइम को हाँ, 1 सेकेंड एग्जांपल है या फिर फिक्स्ड है? नहीं, ये एग्जांपल लिया मैंने, ये फिक्स नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या टाइम क्वांटम यूज करना है। ठीक है? एंड दिस विल स्टडी इन शेड्यूलिंग। जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप देखोगे कैसे होता है। तो द टाइम बीइंग आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हर एक प्रोसेस को हमने एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया है एग्जीक्यूट होने के लिए।
ठीक है, the program which is present in मैं शॉर्ट में लिख रही हुई है ना, सेकेंडरी मेमोरी picked by US to create the process. ठीक है, सपोज दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी, many प्रोग्राम, सपोज आपके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हेलो डॉट सी, ठीक है, हाइड, मतलब ऐसे काफी सारे आपके प्रोग्राम हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, दिस इज प्रोग्राम, ठीक है। अब आप उसको एग्जीक्यूट अगर करना है, अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है, देन इट इज नोन एज प्रोसेस इज क्रिएटेड। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैंने शेयर तो की है स्क्रीन, विजिबल है मैम, विजिबल है। ठीक है, विजिबल है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली जो आपके प्रोग्राम्स डिसाइड कर रहे हैं, दीज आर प्रोग्राम्स, जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पिकअप करता है कोई प्रोग्राम, देन वी से दैट द प्रोसेस इज क्रिएटेड, अ न्यू प्रोसेस। Then second we have ready state. इसको हम बोलते हैं इस डायग्राम को हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। प्रोसेस स्टेट कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे ट्रांसिट हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। The process is loaded into the main memory. The process is now ready to run. And is waiting to get the CPU. Okay. The process here is waiting to get the CPU. Then we have run state.
process ये काम कौन करता है? The process selected by short term scheduler the CPU is assigned to the process for execution. ठीक है, then we have block या वेट स्टेट भी बोलते हैं। ब्लॉक और वेट में कौन जाता है? जिसको आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इन प्रोसेसेस को हम वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड कर देते हैं। ठीक है, इनपुट ऑपरेशन और इनपुट आईओ ऑपरेशन जो है, कोई भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में बैठकर भी परफॉर्म कर सकता है। इट्स नो प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरी फॉर अ प्रोसेस टू कम इनटू द प्राइमरी मेमोरी फॉर परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन। ठीक है, so whenever a process requests access to input output operation, that is to take input from user ठीक है। जब भी कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब वेट एंड ब्लॉक में प्रोसेस को सेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें सीपीयू का कोई रोल नहीं होता है। सीपीयू सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है, जैसे आपके अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो सीपीयू का काम है परफॉर्म करना। लेकिन जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो उसमें सीपीयू का कोई रोल नहीं होता, इसलिए अननेसेसरी सीपीयू किसी प्रोसेस को असाइन नहीं किया जाता, उसे ले लिया जाता है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी स्टेट में। ठीक है, ब्लॉक या वेट स्टेट में भेज दिया जाता है। दिस ब्लॉक इन वेट स्टेट कहाँ पर होती है? ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही होती है। ठीक है, so the process performs its IO operations and does not require CPU. So once the IO is completed, the process again goes to the ready state. Again goes to the ready state. ठीक है, दिस इज वेट एंड ब्लॉकिंग वेट स्टेट। हाँ बोलिए मैम। रेडी स्टेट ये एग्जीक्यूशन की फर्स्ट स्टेट है मैम। क्या होता है, जब आपने प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, लेकिन जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहता है तो उसको हम प्रोसेस बोलने लगते हैं।
ठीक है, मतलब कि आपकी न्यू प्रोसेस क्रिएट हुई। जैसे आपने कोई मीडिया प्लेयर चलाया, ठीक है, तो मीडिया अभी तक मीडिया प्लेयर का जो भी सॉफ्टवेयर था वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे आपने उसको प्ले किया वो प्रोसेस क्रिएट हो गई, उसको बोलते हैं प्रोसेस क्रिएट हो गई, न्यू प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई सी का प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम तो आप काफी सारे सेव करके रखते हो अपनी हार्ड डिस्क में, लेकिन जब वो प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस क्रिएट हो गई। सपोज जैसे कि देखो, ठीक है, हम टास्क मैनेजर मैंने चलाया, तो टास्क मैनेजर में आपकी बैकग्राउंड कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड चल रहा है, ये सारी प्रोसेस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड चल रहा है, तो ये आपकी प्रोसेस कहलाएंगी। जी मैम। ठीक है, तो प्रोसेस जब आपकी नई क्रिएट होती है, क्रिएट होना मतलब कि अब वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो सारी प्रोसेसेस कहलाती है न्यू प्रोसेस। लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, फिर उन प्रोग्राम्स को लेकर आता है रेडी मेन मेमोरी में लेकर आता है रैम में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जितने ज्यादा प्रोग्राम के लेकर आएगा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, उतनी ज्यादा आपकी डिग्री है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। रेडी स्टेट में क्या होता है, दे आर रेडी टू रन, मतलब वो दे आर वेटिंग फॉर सीपीयू, तो उनको सीपीयू मिल जाए वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट, रेडी क्यू। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, अगर एक ही सीपीयू आपके कंप्यूटर में, तो एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो एक प्रोसेस को उठाएगा, उसको सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा और वो टर्मिनेट होगा इस तरह से। बीच में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को फिर से रेडी क्यू में मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से वर्क होता है। ठीक है, यस मैम। जैसे आप मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यूज करें, तो मल्टीटास्किंग में जैसे बहुत सारी प्रोसेस एक टाइम पे चल रही है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि बैकग्राउंड में सारी प्रोसेस चल रही है, तो इतने फ्रिक्वेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम इनको असाइन करता है हर एक प्रोसेस को सीपीयू, यू कैन नॉट इवन जज आउट की कौन सी मतलब मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको लगता है कि आप जो यूज कर रहे हैं यही हमें पूरे मतलब हमें डेडिकेटेड सीपीयू असाइन है, बट ऐसा नहीं होता है। राउंड रॉबिन फैशन में सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू असाइन होता जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। यस मैम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कोई आई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है तो हमने उसको वेटेड ब्लॉक में सेंड कर दिया। यस मैम। अब क्या नेक्स्ट स्टेट क्या है, यहाँ पर हमने कर दिया, देन वी हैव टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड का मतलब कि वो प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटली अपना एग्जीक्यूशन कर चुकी है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उस प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। ठीक है, अब उस प्रोसेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक बार वो वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, देन दैट आफ्टर दैट प्रोसेस इज किल्ड, उसका कोई भी डिटेल्स नहीं रहेंगे, द प्रोसेस इज किल्ड एंड द पीसीबी इज डिलीटेड। पीसीबी एक आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बट दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। पीसीबी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रोसेस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, उस रिकॉर्ड जो हर एक प्रोसेस का एक अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सपोज देयर आर 5 प्रोसेसेस, तो 5 पीसीबी मेंटेन करेगा ओएस, हर एक प्रोसेस का अलग अलग पीसीबी होगा। पीसीबी में क्या इंफॉर्मेशन रहती है कि उस प्रोसेस का यूनिक आईडी क्या है, मतलब कि जैसे आपके स्कॉलर नंबर होते हैं, है ना, सबके यूनिक स्कॉलर नंबर होते हैं, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर मतलब कि हो सकता है इस प्रोसेस को बीच में हमने स्टॉप कर दिया या आईओ के लिए चला गया, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपका मल्टीपल लाइन इस प्रोग्राम में, इस प्रोसेस में, सपोज ये यहाँ तक सेकंड तक एग्जीक्यूट हो चुका है, अब इसको थर्ड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेंटेन करके रखता है प्रोग्राम काउंटर में कि अब कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे इनके रजिस्टर्स होते हैं, इस तरह से काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है पीसीबी में। तो हर एक प्रोसेस का पीसीबी जैसे ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, जैसे P1 ने अपना कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन, तो P1 का पीसीबी डिलीट कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
मैम प्रायोरिटी भी यहीं पे स्टोर होती है क्या? प्रायोरिटी यहाँ थोड़ी ना स्टोर होती है। हाँ, उसका ये जैसे आपने अगर आप टाइम क्वांटम यूज कर रहे हो, है ना, तो उसमें डिटेल्स आएगी कि 1 सेकंड के लिए सपोज इसका एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए 4 सेकंड्स के लिए इसको एग्जीक्यूट होना था, सिर्फ इसको 2 सेकंड के लिए सीपीयू मिला है। ये सारी डिटेल्स भी इसी में रहती है कि अब इसका कितना टाइम रिमेनिंग है एग्जीक्यूट होने के लिए। सारी की सारी डिटेल्स पीसीबी में मेंटेन होती है। हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में अच्छे से देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि पीसीबी एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ब्लॉक यूज किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। जैसे कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अभी आप उसकी डिटेल में नहीं जाओ, हम उसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कंटिन्यू करूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस हैं? ठीक है, देन वी हैव सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं। जब रेडी क्यू कंप्लीटली फुल हो जाती है तो कुछ प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वो वेट तो कर रही है, सेकेंडरी मेमोरी में जाके भी वेट कर सकती है। अननेसेसरी अगर स्पेस नहीं है तो उनको प्राइमरी मेमोरी में नहीं रखा जाएगा। तो क्या होती है सस्पेंड रेडी? क्या होता है? द प्रोसेसेस which were initially in ready state, जो रेडी क्यू में थी पहले, but were swept out। स्वैप आउट समझ रहे हैं ना आप? प्रोसेस को हमने बाहर कर दिया। कौन करता है ये काम? मिडिल टर्म शेड्यूलर। बट वर स्वैप्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी। उसको हम वर्चुअल मेमोरी में शिफ्ट कर देते हैं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी जो एक वर्चुअल मेमोरी आपने पढ़ा होगा शायद पहले कभी। सेकेंडरी मेमोरी का ही कुछ पार्ट जो हम एक वर्चुअली ट्रीट करते हैं वो आपने पढ़ा होगा, उसको रेफर कर देना इस टॉपिक को ना। वर्चुअल ठीक है, swept out to main memory and shifted to virtual memory। ठीक है, दिस इज सस्पेंड रेडी स्टेट। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही आपका रेडी क्यू फ्री होगा, अगेन दीज प्रोसेसेस विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी टू द मेन मेमोरी। ठीक है, we have one more state, that is suspend wait or suspend block। मैम ये इनिशियली के पहले क्या लिखा? इनिशियली के पहले ये लिखा है प्रोसेसेस व्हिच वर इनिशियली इन रेडी स्टेट, वन लिखा है WR। और इनिशियली जो पहले से प्रोसेस रेडी स्टेट में थी उनको हमने स्वैप आउट कर दिया मेन मेमोरी से और शिफ्ट कर दिया वर्चुअल मेमोरी में। क्यों कर दिया है? क्योंकि रेडी क्यू आपकी फुल हो चुकी है, देयर इज नो मोर स्पेस। जो होता है लैक ऑफ मेन मेमोरी। The processes which are performing, which are doing इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, and due to lack of memory, lack of main memory,
processes are shifted to are moved to secondary memory. ठीक है, जो प्रोसेस अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑलरेडी परफॉर्म करेगी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी हमको क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर देंगे. And then when their work is finished, when they finished IO, जैसे इनका IO कंप्लीट होगा, it may go to ready, it may go to suspend ready. ठीक है, उनको सस्पेंड रेडी में शिफ्ट कर देंगे. सस्पेंड रेडी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है. सस्पेंड रेडी से वो जाएंगे रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट से फिर वो जाएंगे रनिंग स्टेट में चले जाएंगे. तो देयर आर 7 स्टेट्स. ये पूरा एक सिनेरियो की एक प्रोसेस जब क्रिएट होती है और उसको टर्मिनेट होते होते उसके बीच में उसको कितनी सारी स्टेट्स सफर करने का स्टेट से वो ट्रांजिट होती हुई जाती है. ये पूरे प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ. उसके बाद थोड़ा कुछ तो है रिमेनिंग, हम शेड्यूलर नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे. उसके बाद तो मैं पीसी भी स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस. जस्ट अ सेकेंड. आपको क्या करना है? अगस्त में कल कोई क्लास नहीं है, फर्स्ट को भी क्लास नहीं है. तो आई एम टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ ईसी ब्रांच फर्स्ट. ठीक है, ईसी में रोल नंबर 1 संजय सिंह. प्रेजेंट मैम. संजय सिंह प्रेजेंट. यस मैम. Then Piyush Dikshit, roll number 5. Not there. Ajay Sharma. Shri Ram Sudarshan, roll number 24. Present, ma'am. Ma'am, 24%. 24 present. 28 Prashant Pandey. Present, ma'am. 32 Darshan Patidar. Present, ma'am. 32. 33 Hardik Sharma. Hardik, are you there or not? 34 Tikam Singh. Tikam, roll number 34. Not there. 35 Suraj Patel. Present, ma'am. 36 Abhishek. 37 Tushar Gupta. Present, ma'am. Tushar present. Present, ma'am. ठीक है, तुषार प्रेजेंट है. Then 36 अभिषेक, आप भी प्रेजेंट हो क्या? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then 38 आदित्य यादव. Present, ma'am. 39 अवधेश. Present, ma'am. 39. Okay, 40 रमेश. Present, ma'am. Tunaj Ramesh from there. Tunaj Ramesh. Yes, ma'am. 40 roll number 42 Anutosh. Present, ma'am. Then Lavlesh. 44 roll number Lavlesh. 45 Ayush Singh. 47 Shashank Rai. Then 49 Ma'am, 49 present. 49 present. 50 Aditya Paliwal. Yes, ma'am, present 50. ठीक है. 51 Pawan. Present, ma'am. 51. 52 Subhanshu Gupta.
Then Siddhant Verma, 53, roll number. 57, Anant Raj. Present, Anant. Anant present. 58, Piyush Patel. Present, ma'am. Piyush Patel. Present, ma'am. 59, Tushar. Yes, ma'am. Present 59. Roll number 60, Harsh Tripathi. Present, ma'am. 61, Prashant. 62, Shatrughan. Present, ma'am. 62. 63, Ayush Kumar. Present, ma'am. 65, Alok Kumar. Present, ma'am. 65. 66, Sumant Lakshman. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay, Parth, 67. Parth